In this video, we are going to discuss about the gastric juice. So, as in my earlier video, I have discussed that the gastric juice is secreted from the gastric glands, and there are different type of cells which are present in the gastric gland. So, gastric juice is basically the mixture of the secretions from all those type of cells. So, those cells are parietal cells, और चीफ सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, एंट्रोक्रोमोफिन लाइक सेल्स, ईसीएल सेल्स जिनको हम बोलते हैं, ईसी सेल्स बोलते हैं, गैस्ट्रिन जी सेल्स बोलते हैं, तो म्यूकस सेल्स बोलते हैं। इन सभी के कलेक्टिव सिक्रीशन को हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं और ये सभी तरह के सेल्स जो हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। नो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, सो वॉल्यूम almost about 1200 to 1500 ml per day gastric juice is secreted. Its reaction is acidic, or we could say it is highly acidic, so its pH ranges from 0.9 to 1.8. Specific gravity is 1.002 to 1.004. Now if we talk about the composition, so its composition is, it is a watery secretion, so it contains almost 99.5% of water and only 0.5% is the solid part. That solid part again can be divided into two parts, that is organic and inorganic. So inorganic constituents of the gastric juice are HCl, that is hydrochloric acid, sodium, calcium, potassium, bicarbonate, chloride, phosphate and sulfate. Now if we talk about the organic constituents, then these are the mainly enzymes which are present in the digestive juice. So these are pepsin. Basically pepsinogen is secreted and which is converted into pepsin by the action of HCl. So enzymes are pepsinogen or pepsin, rennin, gastric lipase, gelatinase and urase. And others organic constituents are mucus and intrinsic factors. So this is the composition of gastric juice. Now the next is functions of the gastric juice. So obviously the function is about जो भी हमने अभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़े हैं उन्हीं के हम वन बाय वन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. सो फर्स्ट इज फंक्शन इज ऑब्वियसली गैस्ट्रिक जूस is a digestive juice, so its main function is in digestion. So digestion of protein occurs mainly in the stomach. This is because of the presence of this enzyme, that is pepsin. So pepsin is a proteolytic enzyme. So digestive function is mainly the proteolytic function. So also the mechanical digestion occurs in the stomach. So mechanically also the bolus, the food is converted into chyme or bolus, which is the semi-solid form of the food. So mechanical digestion also occurs in the stomach. So muscular churning of the food contents that mixes it with the gastric juice and forms a liquid mass called chyme. So muscular movement also propels the chyme towards the duodenum, where the pyloric sphincter opens to allow the smaller portion to enter. Now the next is the chemical digestion. So chemical digestion में क्या है, जो भी different हमारे हम भी अपने ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो एंजाइम्स पढ़े इन्हीं के जो फंक्शन है इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे. तो केमिकली देर इज़ अ एंजाइम दैट इज रेनिन विच इज़ प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, सो ऑल्सो नोन एज काइमोसिन. इट इज़ अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हुज रोल इज इन डाइजेशन इज टू कर्डल और कोएगुलेट मिल्क इन द स्टमक. सो मिल्क का डाइजेशन जो है वो स्टमक में ही स्टार्ट हो जाता है एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क होता है इससे. तो मिल्क जो है वो कर्डल या कोगुलेट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ रेनिन, जिसको हम काइमोसिन भी बोलते हैं. नेक्स्ट एंजाइम इज गैस्ट्रिक लाइपेज. गैस्ट्रिक लाइपेज जो है बेसिकली जो प्री इमल्सिफाइड फैट है उन्हीं पे काम करते हैं. हम अभी जब आगे पढ़ेंगे हम कि फैट के डाइजेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बाइल, क्योंकि बाइल जो है वो इमल्सिफिकेशन करता है और जब तक इमल्सिफाइड नहीं हो जाते हैं फैट तब तक उनकी सरफेस टेंशन डिक्रीज़ नहीं होती है, इसलिए उन पर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम काम नहीं कर पाता है. इसलिए फैट का डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ तब स्टार्ट हो पाता है जब वो इमल्सिफाइड हो जाते हैं. और ये इमल्सिफिकेशन का फंक्शन कौन करता है, बाइल करता है. बट अभी गैस्ट्रम पे ही हम पहुँचे हैं क्योंकि फूड अभी सिर्फ स्टमक में आया है, तो स्टमक में तो बाइल आया नहीं है. बाइल कहाँ सीक्रेट होगा, बाइल होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में आके मिक्स होगा फ्रॉम द लीवर. सो जो मेन जो डाइजेशन है लिपिड्स का वो स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. लेकिन जो फैट प्री इमल्सिफाइड होते हैं या जिनका इमल्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है वो प्री इमल्सिफाइड है, ओनली दैट is acted upon by the gastric lipase. So only
the butter fat, egg, that type of fat is digested by the gastric lipase. So gastric lipase digests the butter fat of the milk into fatty acids and glycerols. Next enzyme present in the gastric juice is pepsin. So pepsin is basically secreted as pepsinogen, and by the action of HCl, that pepsinogen is converted into pepsin, and this pepsin is a proteolytic enzyme which converts the proteins into proteose, peptones and polypeptides. Now the next enzyme is gastric amylase, which is a weak amylase, and it converts the starch into dextrin and maltose. Urease is the next enzyme. So जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, it acts upon the urea and produces ammonia. Now the next enzyme is gelatinase, which act on the gelatin and collagen of the meat and convert into the peptides. So this is the chemical digestion by the organic enzymes which are present in the gastric juice. Next main function of the gastric juice is hemopoietic function. So in hemopoiesis it plays its role indirectly because because intrinsic factor of Kessel is secreted by the stomach, which is necessary for the absorption of vitamin B12, and vitamin B12 is necessary for the maturation of RBCs. So this is how it is playing its indirect role in hemopoiesis. Next function is protective function. The protective function is by first protective function is by the HCl, because HCl destroys the bacteria which is entering into the entering with food into the stomach, and secondly it protects itself by the action of HCl. So by the alkaline mucus it protects the stomach wall, और ये alkaline mucus कहाँ से secrete होता है? by the mucosal cells present in the gastric glands, जिनको हम goblet cells भी बोलते हैं. तो alkaline mucus protects stomach wall from irritation or mechanical injury or the digestive function of pepsin and HCl. तो इन pepsin और HCl के प्रोटियोलाइसिस ना हो जाए म्यूकोजल वॉल का, इसके लिए अल्कलाइन म्यूकस जो है वो एक्ट करता है, और अल्कलाइन म्यूकस जो है वो अल्कलाइन होता है, इसीलिए HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है, और HCl से और पेप्सिन के प्रोटियोलाइसिस के फंक्शन से म्यूकोजल वॉल को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट इज एपिथेलियल सेल रिप्लेसमेंट. सेकेंडली एपिथेलियल सेल्स जो है वो अपने आप को हर 3 से 6 दिन में जो है वो रिप्लेस करती रहती है. इस तरह से जो म्यूकोजल वॉल है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट इज द टाइट जंक्शंस. देयर इज अ टाइट जंक्शन बिटवीन गैस्ट्रिक जो म्यूकोजल वॉल है उनके बीच में टाइट जंक्शंस होते हैं, जिससे that prevent the gastric secretion from seeping in between the cells. Now the next is action of HCl. So hydrochloric acid activates the pepsinogen and gastric lipase and kills bacteria which enters with the food. It provide acidic medium for the action of digestive enzymes. ये जितने भी digestive enzymes हमने यहाँ पढ़े, जिसमें पेप्सिन हो गया, गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया, यूरेस हो गया, ये सभी जितने भी एंजाइम्स है ये सभी जो है एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं. तो ये एसिडिक मीडियम जो है वो HCl प्रोवाइड कराता है. इट ब्रेक्स अप द कनेक्टिव टिश्यूज एंड प्लांट सेल वॉल्स. इट कन्वर्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट फंक्शन, बाय द एक्शन ऑफ HCl इंजेस्टेड फेरिक आयन्स. जितने जो भी हम आयरन जिस फॉर्म में, या हम कह सकते हैं कि हम अपनी डाइट में जो आयरन लेते हैं वो फेरिक आयरन होता है, बट फेरिक आयरन कैन नॉट बी एब्जर्ब्ड इन द ब्लड. एब्जॉर्प्शन हमेशा फेरस आयरन का होता है. तो ये फेरिक से फेरस में चेंज करने का जो फंक्शन है ये एसिडिक मीडियम में होता है बाय द HCl. सो दिट बाय द एक्शन ऑफ HCl ingested ferric ions are converted into ferrous ions which can be absorbed and used for Hb synthesis. This is the second indirect action of stomach in the erythropoiesis. ऑल्सो देयर इज द एब्जॉर्प्टिव फंक्शन ऑफ स्टमक. जो स्टमक जो है वो एब्जॉर्प्शन भी होता है. स्टमक में किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है? अल्कोहल का, वाटर का एंड विटामिन B12. नाउ द नेक्स्ट इज सिक्रीशन ऑफ HCl. सो देयर इज अ डेवनपोर्ट थ्योरी फॉर द HCl. तो जो पैराइटल सेल्स हैं वहाँ से, उनमें से HCl कैसे सीक्रेट होता है, इसकी एक पूरी एक थ्योरी दी है डेवनपोर्ट ने, इसीलिए इसको बोलते हैं डेवनपोर्ट थ्योरी. सो सीक्रीशन टेक्स प्लेस इन द कैनालिकुलर. इस केस में क्या होगा, जो कैनालिकुलर सेल्स हैं, यहाँ पे इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जो कैनालिकुलर सेल्स हैं जो कि येलो कलर से दिखाए गए हैं इस फिगर में,
वहाँ पर क्या हो रहा है कि CO2 प्लस H2O कंबाइंस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कंबाइन करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है ना, तो वो क्या बना रहे हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनाते हैं, एंड दैट इज़ अ अनस्टेबल कंपाउंड। तो फिर ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये ब्रेक डाउन हो जाता है इन बाइकार्बोनेट आयन एंड H+ आयन। नाउ दिस H+ आयन इज कंबाइंड विद द क्लोराइड आयन। ये जो H+ आयन है ये क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन हो जाता है। तो अब ये क्लोराइड आयन कहाँ से आया है, क्लोराइड आयन आता है ब्लड से। तो ब्लड से क्लोराइड आयन जो है वो एंटर करता है पैराइटल सेल्स में, और वहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन आयन है और जो क्लोराइड आयन है ये दोनों कंबाइन करके HCl बनाते हैं, एंड नाउ दिस HCl इज सिक्रीटेड इन द ल्यूमन ऑफ द स्टमक। और अब क्योंकि क्लोराइड आयन अंदर आया है इसीलिए जो बाइकार्बोनेट आयन है वो बाहर चला जाता है, और वो जो बाइकार्बोनेट आयन बाहर मतलब वो ब्लड में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। जो क्लोराइड आयन है वो ब्लड से पैराइटल सेल्स में आया, और जो बाइकार्बोनेट आयन है वो पैराइटल सेल से ब्लड में गया। इसीलिए आफ्टर सिक्रीशन ऑफ HCl, जब सिक्रीशन HCl का सिक्रीशन होता है, या हम कह सकते हैं जब हम खाना खाते हैं तभी HCl का सिक्रीशन होता है। तो क्योंकि HCl के सिक्रीशन के लिए क्लोराइड आयन को एक्सचेंज किया गया है विद बाइकार्बोनेट आयन, इसलिए जो बाइकार्बोनेट की मात्रा है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाती है, और इसलिए जो ब्लड का pH है वो मील्स के बाद में एल्कलाइन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं आफ्टर मील एल्कलाइन टाइड। सो दिस इज नोन एज आफ्टर मील एल्कलाइन टाइड। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। So secretion, that is the Davenport theory. So secretion takes place in the canaliculi of parietal cells in gastric glands, और इसके लिए जो एनर्जी है डेट इज डिराइव्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। सो दिस इज द एक्टिव प्रोसेस। ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है, ये जो एक्सचेंज का प्रोसेस हुआ है, दिस इज द एक्टिव प्रोसेस। सो इन parietal cells CO2 that is carbon dioxide combines with water to form the carbonic acid, जो कि अनस्टेबल कंपाउंड होता है, एंड इट स्प्लिट्स इनटू द H+ आयन एंड HCO3 आयन। या सो दिस नाउ द क्लोराइड इज डिराइव्ड फ्रॉम NaCl। जो NaCl ब्लड में है, ब्लड में जो सोडियम क्लोराइड रहता है वहाँ से जो क्लोराइड आयन है, नाउ दिस क्लोराइड आयन इज, जो ब्लड में जो NaCl था वहाँ से सोडियम और क्लोराइड आयन अलग हुए। क्लोराइड आयन जो है वो ब्लड से पैराइटल सेल्स में एंटर करता है एंड कंबाइंस विद द H+ आयन इन द पैराइटल सेल्स। अब क्योंकि एक माइनस आयन जो है वो ब्लड से पैराइटल सेल्स में आया, इसीलिए इसके एक्सचेंज में कुछ नेगेटिव जो है वो ब्लड को वापस दिया जाता है। तो ब्लड में जो वापस जाता है वो क्या है, बाइकार्बोनेट आयन। सो क्लोराइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द NaCl इन द ब्लड एंड it is exchanged with the HCO3 minus ion from the blood and then H+ combines with the chloride to form HCl, and which with the compensation of the loss of Cl+। इसलिए क्लोराइड के आयन के लॉस को कंपनसेट करने के लिए बाइकार्बोनेट को एक्सचेंज कर दिया जाता है ब्लड में। सो बाइकार्बोनेट आयन्स फ्रॉम द पैराइटल सेल एंटर्स द ब्लड and combine with sodium to form sodium bicarbonate. Now the blood leaving the stomach to be more basic while digestion is occurring। इसीलिए जो ब्लड लीव करता है, ये जो स्टमक से अब जो ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है वो ज़्यादा एल्कलाइन होता है। क्यों एल्कलाइन होता है, क्योंकि क्लोराइड के एक्सचेंज में बाइकार्बोनेट आयन को उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया, इसीलिए जो ब्लड का pH है वो स्लाइटली बेसिक हो जाता है आफ्टर मील्स और आफ्टर टेकिंग food. So this is known as this high blood pH is known as alkaline tide. Now what are the other factors which increase the HCl secretion? This is the gastrin, histamine and vagal stimulation. By these hormones HCl secretion get increased, and factors which decrease the HCl secretion are secretin, peptide YY and gastric inhibitory polypeptide. This is also a local gastric hormone. So these decrease the HCl secretion. Now the next is regulation of gastric juice secretion. So regulation कैसे होता है, तो जो भी हमारा जितने भी हमारे अब डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन हम पढ़ेंगे उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उनके कंट्रोल को। फर्स्ट इज द सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज एंड इंटेस्टाइनल फेज। तो सिफेलिक फेज मीन्स जब खाना अभी फूड जो है वो गैस्ट्रम में एंटर नहीं किया है, तो दिस इज सिफेलिक। दिस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड। तो हेड रीजन या सिफेलिक रीजन से जो कंट्रोल होता है उसको हम बोलते हैं सिफेलिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक जूस।
सिक्रीशन। गैस्ट्रिक फेज, जब फूड गैस्ट्रम में या स्टमक में एंटर हो जाता है तो उस फूड के स्टमक में आने की वजह से जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक फेज ऑफ द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। एंड नेक्स्ट इज द इंटेस्टाइनल फेज, कि जब खाना इंटेस्टाइन में चला गया है तो इंटेस्टाइन के स्टिमुलेट होने के कारण भी गैस्ट्रिक रीजन में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है, इसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल फेज। So, cephalic phase is the secretion of gastric juice by stimuli arising from the head region and it is called the cephalic phase. Here the juice secreted is known as appetite juice. तो cephalic phase में जो जूस सिक्रेट होता है उसको हम बोलते हैं appetite juice, क्योंकि यहाँ पर क्या है, भूख लगने के कारण या खाना के बारे में सोचने के कारण जो जूस सिक्रेट हुआ उसको हमने बोला appetite juice. So this juice, what we could say the secretion in the cephalic phase is लेस बट इट इज़ रिच इन एंजाइम्स एंड HCl, इसीलिए खाली पेट जो है वो एसिडिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो भी अब सिक्रीशन हो रहा है सिफेलिक फेज में वो कैसा हो रहा है, इट इज़ रिच इन एंजाइम्स एंड HCl। सो कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम थ्रू टू रिफ्लेक्सेस, जो हमने पहले भी पढ़े थे, कंडीशन रिफ्लेक्स एंड अनकंडीशन रिफ्लेक्स। तो कंडीशन रिफ्लेक्स क्या है, जो जब सिर्फ साइट, स्मेल या थॉट या हियरिंग ऑफ फूड when releases the gastric juice, this is known as the conditioned reflex cephalic phase of the gastric juice secretion. unconditioned reflex में क्या है कि जब खाना मुंह में आया उसके कारण जो गैस्ट्रम में गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हुआ उसको हम बोलते हैं अनकंडीशन रिफ्लेक्स। और इन दोनों में ही जो रीज़न है वो क्या है, वेगल स्टिमुलेशन। तो वेगल स्टिमुलेशन से क्या है, पैरासिम्पथेटिक सिक्रीशंस पैरासिम्पथेटिक नर्वस कंट्रोल जो है, जितने भी डाइजेस्टिव जूस हैं उनके सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर यही सी मैकेनिज्म से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। तो दिस इज नोन एज द गैस्ट्रिक फेज ऑफ cephalic phase of gastric juice secretion. Now the next is gastric phase. So this gastric phase is again under the nervous and hormonal control. नर्वस मैकेनिज्म कैसे काम करता है, जैसे ही फूड गैस्ट्रम में एंटर करता है तो जो लोकल माइंट्रिक मैकेनिज्म है, जो लोकल हमारा प्लेक्सस है ना, वो स्टिमुलेट हो जाता है और साथ में वेगोवेगल रिफ्लेक्स, जो वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट हो जाती है। तो वेगस नर्व बेसिकली क्या है, पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन है, जिसके कारण से जो गैस्ट्रिक जूस है उसका सिक्रीशन इंक्रीज होता है। तो दोनों ही रिफ्लेक्सेस के लिए, चाहे वो लोकल माइंट्रिक रिफ्लेक्स हो चाहे वेगोवेगल रिफ्लेक्स हो, उनके लिए स्टिमुलेशंस कहाँ से आती हैं, जैसे ही जो फूड एंटर करा स्टमक में तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं दे गेट स्टिमुलेटेड and mechanical stimulation of the gastric mucosa by the bulk of food and chemical stimulation of gastric mucosa by the food content. तो अगर फूड में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है तो भी HCl तो भी जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है उसका सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली जो केमिकल कंटेंट ऑफ द फूड ऑल्सो डिटर्मिन्स द गैस्ट्रिक फेज of release of the gastric juice. Now the hormonal mechanism which is playing its part in the gastric release, gastric juice release, these are the different GI hormones which determines the release of gastric juice. So when food enters stomach, there is a release of gastrin hormone, and it is stimulated by the neurotransmitters. So by the release of gastrin, it stimulates secretion of pepsinogen and HCl by the gastric glands, which all the partially digested proteins, caffeine and high pH of the chyme stimulate the release of gastrin. So this gastrin is just because ये जो gastrin है ये hormone है, so this is the hormonal influence on the gastric juice release. So जो हमारा gastric phase है वो nervous control में भी है और hormonal control में भी है। तो बेसिकली जैसे ही बोलस स्टमक में आया, वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, जो लोकल माइंट्रिक और ऑर्बिक प्लेक्सस की हमने बात की थी वो स्टिमुलेट हो जाता है, और जो हॉर्मोन्स है वो स्टिमुलेट होते हैं, तो इसकी वजह से गैस्ट्रिन रिलीज होता है और फाइनली गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। तो दिस इज द गैस्ट्रिक फेज। नाउ द नेक्स्ट फेज इज इंटेस्टाइनल फेज. So secretion of gastric juice when chyme enters the intestine. So initially the gastric secretion increases but later it stops. So initial stage में क्या हो रहा है, chyme stimulate करता है duodenal mucosa को to release gastrin and which is transported to the stomach by blood and it stimulate gastric secretion. तो इस intestinal phase basically पूरा का पूरा किसके इन्फ्लुएंस में है, हार्मोन के इन्फ्लुएंस में. जैसे ही इंटेस्टाइन में बोलस आता है वहाँ पर जो है उसकी जो म्यूकोजा है वो स्टिमुलेट करती है गैस्ट्रिन के रिलीज़ को. अब ये जो गैस्ट्रिन है वो ब्लड में रिलीज़ कर दिया जाता है और वाया ब्लड
जब ये गैस्ट्रिन स्टमक में पहुंचता है तो ये गैस्ट्रिन जो है गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट कराता है। तो दिस इंटेस्टाइनल फेज इज अंडर द हार्मोनल कंट्रोल। जैसे कि हमने अभी गैस्ट्रिक फेज में कहा था कि गैस्ट्रिक फेज इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोनल एज वेल एज नर्वस, बट जो इंटेस्टाइनल फेज है इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ hormone only, that is gastrin. So this these is a intestinal. So this is all about the gastric juice. Thank you.